Three, Fiki, can all give him a whoosh wish. One, two, three. Whoosh. All the best. All the best, Gaurav. Recording stopped. All the best. Food industry. This is especially about fats, oil, and grease. It's an invisible monster that is there, which fails the pipes. It's a major service issue, and Himachal mein it is a massive problem. So most of the people who are in hotel industry or food industry must have seen these clogged pipes. So pipe must be so big, but 50-60% it is clogged with drains. This is a major problem, and the cause is one of our cooking oils and whatever we cook. And the hidden cost is this: our drains get choked, our rivers get choked, and there is no proper cleaning system. And we end up doing manual cleaning, but Himachal there are no proper septic tank cleaning things, and in future labor and cleaning of the things is very difficult. And see what all comes from the kitchen drains. It is just a massive problem. On top of that, now it is manual cleaning is illegal as well. So there's no mechanical cleaning system in Himachal and other places. And due to population increase, neighbors also complain if dirty water comes. And there are obviously pollution board and smell issues when guests are there, and pest issues as well. And the biggest problem is this: when we put our cooking oil down in the drain, they just choke everything. That's the biggest problem here. So what exactly it is? So so basically इट इज व्हेन वी डिस्चार्ज आवर फैट्स से जब हम कुकिंग करते हैं, जैसे हम कोई कढ़ाई पनीर या कुछ भी बना रहे हैं, तो उसका फैट्स ऑयल ग्रीस, हमने चपाती छोड़ी है, दैट इफ देयर इज अ फूड इंडस्ट्री, मिठाई इंडस्ट्री, देयर इज मिल्क वेस्ट मिल्क कमिंग आउट, फैट्स कमिंग आउट. सो ऑल दिस पार्ट ऑफ दिस फैट व्हेन दे व्हेन इट cools down, it basically solidifies and creates a layer. In Himachal, in cold areas, this layer is very difficult to break up. That is why it creates lots of problem. The problem is that it reduces your pipe size, and it corrodes the pipe, and it creates lot of undersized problems. And for hotel owners especially, the problem is I have seen certain rooms which are not able to go at a particular rate because of smell issues. I've seen it in Himachal, Chandigarh. There is reputational damage where customers create problem or sometimes write revenues. Emergency repairs. So emergency repairs, in terms of that, you have to suddenly clean septic tank, clean drainage system, and ask sweepers at a very wild cost. Health violations, like people in pest control will be, Pamanji will be able to tell that with most of the drains clogged, there are a lot of pest issues. With pest issues, they use a lot of chemicals, so, which are also harmful for health. And there are operational chaos, because we are all, the staff is always in the fighting mode. The owner says that okay, be okay, but the staff is always in the fighting mode. So there is always stress in the team, and there is never a systemic solution to this whole issue. And the problems are many. One is undersized pipes, the designing is not proper, pressures are not okay, the slopes are not okay, and there's a complete design fault in it. It is not a plumbing problem, it's a design fault. One of the biggest problem areas are the kitchen suppliers. So most of the kitchen suppliers who design the kitchen give high-end kitchen equipment, basic installation, but they forget about staff training, grease management, and maintenance planning. That is what is suffered by the food industry basically. That is service void. So even the design, so any building designed is based upon grand opening, aesthetics, but what about utilities? Not many people care about it now, but utilities are something, especially plumbing, they make the industry bleed over a period of time, and there is a very big maintenance gap. So coming here, and there's a true cost. So normally, if you do a service visit, it might cost 1,000 or 2,000. But if you do a complete emergency thing, it might cost about 1 lakh. There is a huge loss which people don't neglect, and all the dirt and which comes along with it. So grease traps works in a very simple formula. It removes the grease, it removes the solids like चावल के बचे हुए चीजें, कोई solids, और वो आपकी drains को clean करते हैं. So these are some of our installations. These are something vertical grease traps, which are one of the very successful grease trap in Himachal. And this is SS grease trap. So these are gravity separation, no need of manual operation. It is very easy for worker to use and maintain it.
And so if you can see a simple operation, here it is dirty red water, and here it is blackish water. So basically the water has naturally been cleaned. The grease, oil, dal, gravy, sub separate ho gaya. So this is something very good. And one of the best things we also offer is complete total compliance. So we not only supply the product, we do an assessment, implement, train the staff with logbooks, maintain, monitor, optimize. So give a complete life cycle management system. So it's just not about a product, it's about a trusted vendor, auditing and things like that. And we are coming with a masterclass on planning of your drainage system and designing system. I will be just posting it in the WhatsApp group. I will request that whosoever will be interested, please register for it, and it will be a one over a period of 1 month. There are multiple dates, and it will be something really wonderful. So we will be auditing your existing system. We will be guiding you on how it has to be, how it is not has to be, and it will be complete system beyond compliance. It will be financial insurance in terms of the fact कि आपकी problems नहीं होगी. You will be mental free. The owner will be tension free, and I will share you some things. I still have a minute, so I will show you some quick videos. So. So this is the type of clogging that happened in the train. एंड लोगों ने गलतियां क्या की थी कि अंडरग्राउंड डिजाइनर ने जब बिल्डिंग बन रही थी पाइप ही डाल दी, वो पाइप बिल्कुल चोक हो चुकी है, तो कैसे क्लीनिंग होगी बाद में? इट इज अ मैसिव प्रॉब्लम, और इन्होंने वापस पूरा खर्चा करना पड़ा. सो यहाँ पे भी सिमिलर इशू हुआ कि जितनी भी ड्रेन्स डिजाइन है, ये 6 इंच की 2 फुट 2-3 इंच नीचे थी एसएस की ड्रेन्स, वो सफिशिएंट ही नहीं थी इन सबको हैंडल करने के लिए. फूड इंडस्ट्री है ये. देन ये देखिए, ये हाल है इनके, और यहाँ पे मेजर इश्यूज आए, इनके पूरे चैंक्स और वो सब चोक हो गए. ये एक दूसरी इंडस्ट्री है, बहुत ही अच्छे डिजाइनर ने डिजाइन की थी. बहुत बड़ी इंडस्ट्री अंबाला में बन रही है. पुरानी फोटो है थोड़ी सी. मतलब जहाँ पे 1-1 लाख लीटर पानी क्लीन होने में निकलना है, वहां 3 इंच की चौड़ी ड्रेन बनाई है. दिस इज इनसफिशिएंट. सो ऐसे ऐसे मैसिव प्रॉब्लम्स पीपल आर डूइंग which create a lot of issues. So closing my presentation here on grease trap and Himachal के लिए why it is the most significant thing, because low temperature की वजह से it ruins the entire ecosystem. और यहाँ cleaning trucks नहीं है, सीवरेज वाले 50,000 लाख रुपए मांगते हैं. Thank you so much. Thank you so much, Gaurav ji. You always come up with something interesting, and it was great to see the content. गौरव सर, बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन रही आपकी, और ग्राफिकली भी और वैसे भी. अदरवाइज इट्स ग्रेट लर्निंग फॉर अस. तो आप एग्जीक्यूट करते हैं चीजें नई नई, हर बारी कुछ ना कुछ सुनने को समझने को मिलता है आपसे. डेफिनेटली ट्राई कि आपके लिए और कुछ बिजनेस ला सकें. थैंक यू. थैंक यू सो मच सर. धन्यवाद. Thank you, Manoj ji. Kuldeep ji. जय श्री राम गौरव जी, वेरी वेल प्रेजेंटेड. जय श्री. और आपसे तो हर रोज कुछ ना कुछ नया सुनने को मिलता है, तो आप लोग जगा देते हैं हमारे को कि यार होटल इंडस्ट्री में कहाँ क्या चीज कैसे हो रही है. तो मुझे एक चीज जानना था. चलो वो आपकी पाइप्स की फिटिंग तो अब हमारी हो चुकी है, जो भी कुछ होना था, तो अब हम प्रिकॉशंस क्या ले सकते हैं सर? अभी क्या केमिकल यूज कर सकते हैं जिससे कि वो चोक ना हो? अभी सर देखो, ऐसा है, प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन केयर. केमिकल्स तो आप हमेशा यूज कर ही सकते हो, उसमें तो देयर इज ऑलवेज अ सॉल्यूशन. बट वो आपको ना इवेंचुअली लॉन्ग टर्म में केमिकल्स आपको प्रॉब्लम ही देंगे, सॉल्यूशन ही देंगे, क्योंकि वो पाइप्स को गला देंगे, सीमेंट को गला देंगे. आपके लिए लीकेज की प्रॉब्लम, सीलन की प्रॉब्लम, वो अलग पंगा कर देंगे. तो बेटर तो ये है कि आप एटलीस्ट किचन के लिए, अगर प्लम्बिंग में पॉसिबल नहीं है, एटलीस्ट ग्रीस ट्रैप्स लगवाइए और ग्रीस ट्रैप को सेपरेट करिए. ये ग्रीस आने वाले टाइम में, इनफैक्ट आने वाले के अभी भी है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में एक मैसिव प्रॉब्लम है. इतनी मैसिव प्रॉब्लम है कि मैं बता नहीं सकता, मतलब क्रेजी है. बल्कि एक होटल था हमारा कांगड़ा में, वहाँ पे 5 या 6 फ्लोर्स का होगा.
तो उनके इतना स्मेल आई बैग से, टॉयलेट से, होटलों के कमरों में ही स्मेल आ रही है। तो जो वेटर आता है वो सेंट मार के चले जाता था, बट वो प्रॉब्लम नहीं जा रही थी, मतलब इट इज सच अ मैसिव प्रॉब्लम। तो बेटर है आप ग्रीस ट्रैप लगाइए, छोटा लगाइए या कोई हौदी जैसी बनवा लो, बट वो जरूर करिए। नहीं, ये सर स्मेल की प्रॉब्लम तो सर हर होटल्स के साथ है, चाहे वो 5 स्टार 4 स्टार में भी कई जगह पे ऐसी प्रॉब्लम आ ही जाती है, क्योंकि स्मेल की बहुत बड़ी इशू है होटल्स के साथ। तो स्मेल का इशू, स्मेल का हम हाँ। इशू सॉल्व करते हैं, एंड उसमें मतलब मैं कैपेबल बोलूँगा, हिमाचल में काफ़ी अच्छी स्पेशलाइजेशन है मेरी, बट उसका मेन रीज़न है 90% स्मेल की प्रॉब्लम ये होती है। मनोज शादिया सर भी, आर्किटेक्ट सर भी यहाँ हैं, ये भी मेरी बात को सेकंड करेंगे। प्लम्बिंग में 90% लोग बड़ा नज़रअंदाज करते, देसी प्लम्बिंग की हमने पाइप्स ले ली, टॉयलेट अच्छा सेट कर दिया, हो गया। नो, प्लम्बिंग हैज़ टू बी सीन फ्रॉम सर्विस पॉइंट ऑफ व्यू। हम लोग अपनी प्लम्बिंग प्लम्बर्स को आउटसोर्स कर देते हैं कि भाई प्लम्बिंग तू देख ले, फॉर सम रीज़न, और क्लाइंट्स भी नहीं इतना पेंस लेते, और हर जगह आर्किटेक्ट भी नहीं जा सकते हर एक पाइप को देखने। बट इसकी डिजाइनिंग की प्रॉब्लम इतनी, कहीं स्लोप्स प्रॉब्लम होते हैं, ये सिस्टम अगर फॉल्ट है, स्मेल आपकी कभी रुकेगी नहीं। ठीक है, तो वो सॉल्व करना पड़ेगा, एंड बट ये हो जाएगा सॉल्व। इट हैज टू बी, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग इट इज अ सिस्टम डिजाइन प्रॉब्लम, नॉट अ प्लम्बिंग प्रॉब्लम। चलो, थैंक यू सर वेरी मच, और 1 to 1 करते हैं, और आप देखें आप हमारे पास होटल में आके क्या हो रहा है। मैं एक मास्टर क्लास कर रहा हूँ, अगर आप किसी को रिकमेंड करें तो प्लीज, दैट विल बी नाइस। आई हैव शेयर्ड द डिटेल्स। श्योर सर, श्योर, थैंक यू। थैंक यू कुलदीप जी। मनीष भैया। राजा जी, आपने बहुत अच्छी अच्छी चीजें दिखाई। अब मुझे कुछ और क्लैरिफिकेशन चाहिए। जो आप ग्रीस ट्रैप दिखा रहे थे ना भैया, हम देख पा रहे हैं कि उसमें 3 सेगमेंट में उसको क्लीन हो गया, जो उसका जो लास्ट का स्लज या बहुत सारा मटेरियल लगे, वो कहाँ जाता है, और व्हाट डू वी डू विद दैट? देखिए, अभी ये इंडस्ट्री इंडिया में बन रही है, सो वैसे ये आ गई है, मतलब ये कबाड़ी की तरह बिकता है। मतलब जैसे हम अपने पुराने पेपर्स बेचते हैं, दिस इज सोल्ड। इनको बोलते हैं ऑयल एंड ग्रीस कलेक्टर्स होते हैं। अभी बद्दी और चंडीगढ़ साइड है 2-4 लोग रजिस्टर्ड। सो ये आपको खरीदते हैं, अगर आप इसको प्रॉपरली सॉर्ट आउट करके देते हैं, जिसमें प्लास्टिक नहीं होगा, ज़्यादा मिक्स नहीं है, ग्रीस है, ऑयल है, खाने का वेस्ट है। तो इनफैक्ट अगर अभी गूगल करें आप, इंडिया हैज़ रिसेंटली लॉन्च सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल पॉलिसी, कि अभी तक हमारा फ्यूल जो एविएशन में लगता है सारा इंपोर्ट होता है, सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल बनता है SAF, वो इन सब चीज़ों से बनता है, ऑयल एंड ग्रीस से। तो इसकी बहुत मैसिव इंडस्ट्री है, क्योंकि ऑयल एंड ग्रीस से आप सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल बना सकते हैं। तो ये आप सेल कर सकते हैं कबाड़ी की तरह। FSSAI के एक इनिशिएटिव तो है रुको, जिसमें रीयूज ऑयल यूज हो जाता है, बट आप कह रहे हैं कि ये जो ग्रीस्ड ऑयल है, जो भी ये स्लज है, ये भी यूज हो जाता है, आप ये कह रहे हैं? हाँ जी, बिल्कुल, व्हाई नॉट, एवरीथिंग, देयर इज नथिंग वेस्ट इन द वर्ल्ड, एवरीथिंग इज इसकी इंडस्ट्री। क्योंकि इसको डिस्कार्ड करना, आई रिमेम्बर मैंने ना ग्रीस टैप लगा लिया था, छोटा लगाया था। मेरी सबसे ज्यादा मेरी किचन में ना ये नहीं होता कि ऑयल हो रहा है, मेरे इसमें विम बार बहुत ज्यादा यूज होता है, क्योंकि ट्रे वॉशिंग 1000 ट्रे दिन की जब धुलनी है, मेरा वो ग्रीस, उसका वो विम बार वाला सोल्यूशन क्या है? मेरे को तो विम बार वाला सोल्यूशन चाहिए। मैं अल्टीमेटली देखो, अगर मैं 1000 लीटर भी पानी यूज कर रहा हूँ एक दिन का, तो भाई वो 1000 लीटर मैं उसको बर्बाद कर रहा हूँ, मैं ये बोलूंगा, क्योंकि मैंने उसमें केमिकल डाल दिया, मैंने उसमें विम डाल दिया। चाहे देखो घर में भी बर्तन धुल रहे हैं, एंड ऑफ द डे तो ड्रिंकिंग वाटर को हमने नॉन ड्रिंकिंग कर दिया। वही चीज किचन में हो रही है हमारे भी, ऑन अ लार्जर स्केल। तो भाई उसका सोल्यूशन दे दो, मजा आ जाएगा यार, कि हम पानी देखो, को कम उसके से लिए कम। मैं आपको सर बड़ा सिंपल और इजी सॉल्यूशन बताऊंगा। विम का मेन होता है पीएच वो हाई कर देता है, क्योंकि ये सोप्स होती है सारी की सारी, और पीएच हाई होने से सारा खराब हो जाता है। बस उसको पीएच न्यूट्रलाइजिंग कर, मतलब सिंपल सॉल्यूशन, कोई मशीन, पीएच को उसका रिड्यूस कर दे, न्यूट्रल बना दे 7 pH में, और फिर आप डिस्चार्ज करें। आई एम नॉट सेइंग 100%, बट 50 to 60% you will solve the problem without spending any significant money. Just चलो ठीक है, थैंक यू सो मच भैया, that's थैंक यू। मैं आपसे easy. डिस्कस करूंगा, देयर आर लॉट ऑफ क्वेश्चंस, हम उनको भी ले हाँ लेते जी, हैं। थैंक यू मनीष जी। विक्रांत जी। गुड मॉर्निंग गौरव जी। पहले तो बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन थी। हम बोलते हैं बी स्पेसिफिक, तो आप इतने स्पेसिफिक थे कि आई थिंक बहुत लोगों की जो प्रॉब्लम्स है वो आपने आइडेंटिफाई की और बताई। जैसे मनीष जी ने पूछा, सेम क्वेश्चन पहले मेरा भी था कि मतलब वो उसका हम क्या करते हैं जो स्लज बढ़ जाता है। सेकेंड थिंग इज, फिर वही बात आ जाती है, ऑलरेडी जो इन प्लेस है सिस्टम्स,
उनमें आप कैसे हेल्प कर सकते हो? बिकॉज पाइप्स तो डल चुकी है, अब आपने दिखाई 3 इंच की पाइप, 4 इंच की पाइप, अब उसको तो चेंज नहीं कर सकते, तो उसमें व्हाट इज द बेस्ट वे फॉरवर्ड? सर उसमें हम लोग ऑफर कर रहे हैं पूरा जो मेरा FOG फ्रेमवर्क है, वी आर ऑफरिंग कंप्लीट सर्विस एंड मेंटेनेंस फ्रेमवर्क। बेसिकली 99% मैंने देखा है हम लोग ट्रेडिशनल माइंड से चलते हैं, वर्कर्स आर नॉट डूइंग इट प्रॉपर्ली। ओनर जब प्रॉब्लम आती है तब हम उसमें फायर फाइट करते हैं। सो उसके SOPs हम सेट करवाते हैं एंड वो क्लीनिंग से रेगुलर सेट करवाते हैं। अगर वो आप करते हैं उससे मतलब दिस इज स्मॉल माइनर चेंज, बट इफ दैट इज डन, SOPs प्रॉपर हो गए, उसका डेली चेकलिस्ट, वीकली चेकलिस्ट, कैसे करना है, क्या करना है, वीडियो ट्यूटोरियल, वो सारा हो गए, तो आपकी 60-70% प्रॉब्लम्स कैन गेट इजीली सॉल्व। चलो गौरव जी, we'll have another one-to-one whenever you are available, so I will talk about it whenever you come there. मेरी एक्चुअली चंडीगढ़ में भी एक से बात हो रही थी मनमीत से, so he said like he has been working with you, he set up water plants in Himachal. हाँ। थैंक यू विक्रांत जी। थैंक यू। पावन जी, आपने Yes, रेज sir. किया हुआ है। सबसे पहले तो गौरव जी बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन थी। वैसे काफ़ी सारी चीज़ें तो आपने डिस्कस कर ही ली है अभी मनीष जी और विक्रांत भी के साथ। मेरा एक कंसर्न था, जैसे मतलब ऑलरेडी जो सिस्टम बने हुए हैं होटल्स में, स्पेशली अगर मैं होटल्स की बात करूं, उनका जो ब्लॉकेज का प्रॉब्लम रहता है, तो हम उन्हें क्या सजेस्ट कर सकते हैं? मतलब उनका रूटीन, मतलब किचन वाला जो ब्लॉकेज का आपने बताया था कि हाँ वेजिटेबल ऑयल स्टक हो जाता है, तो हाउ दे क्लीन, मतलब कि हाँ वो चीज़ उनको फेस आउट ना करना, मतलब ड्रेनेज सिस्टम ही चेंज करवाना है, या कि वो उनको ब्लॉकेज वो क्लीन करवाते हैं, या कास्केट सोडा के थ्रू, या फिर उसमें ड्रेन्स में मतलब वायरिंग के थ्रू उसको क्लीन करा लेते हैं। वो टेम्प्रेरी सोल्यूशन होता है, 1 महीना 2 महीना उनको सोल्यूशन मिलता है, तीसरे महीने दोबारा ब्लॉकेज इशू आते हैं मोस्टली होटल्स में। सर तो मैं लिंक करूंगा ये, अबू मैम रिलेट करेगी, हार्ट ब्लॉकेज की तरह है। जब हार्ट ब्लॉक हुआ तो डॉक्टर के पास गए, उसे स्टंट लगा दी। हाँ, बट प्रॉब्लम क्या है इसका, कॉस्टिक, आजकल तो आप कॉस्टिक सोडा ये सब भी नहीं डाल सकते, क्योंकि मोस्टली STPs कनेक्टेड है होटल कमर्शियल प्रॉपर्टीज के, वो STPs फेल हो जाएंगे। तो मेन सॉल्यूशन इसका नहीं बॉयल करता है बेसिकली सर्विस और मेंटेनेंस में। अभी रिसेंटली मैं एक जगह विजिट किया, क्योंकि किचन कमर्शियल किचन्स में लोग वर्कर्स क्या करते हैं, ओनर जितने भी अच्छे हो, जब वो शाम को बर्तन धोते हैं ना, वो सारी नालियों की जालियां पड़ देते हैं, सारी रिमूव कर देंगे और भगोने भगोने निकाल देते हैं। आपने जितना बढ़िया, और जो ये किचन डिजाइनर्स हैं, 90% ऑफ किचन डिजाइनर्स जो ये कर रहे हैं, कोई ड्रेनेज ढंग से नहीं करता। लोग ओनर्स डिजाइन करते हैं, आर्किटेक्ट डिजाइन करते हैं, SS का, बट SS इज ओके, दैट इज मटेरियल, बट इन द एंड तो उसमें पानी बहना है ना कचरे के साथ, तो उसके पॉइंट ऑफ सर्विस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कर पाते। तो इसका एक ही जो बेस्ट सॉल्यूशन ये है कि यू विल हैव टू इम्प्लीमेंट गुड SOPs फॉर दैट। ग्रीस ट्रैप इज, क्योंकि प्रोडक्ट्स तो एक 50% ऑफ द पार्ट है, 50% इज द SOPs। SOPs इज अ वेरी बिग मार्केट कैप, और SOP सेट करना और SOP की मॉनिटरिंग करना रेगुलर, इतना ही हो जाए तो 50-60% प्रॉब्लम जीरो, मतलब को बिना खर्चे के सॉल्व हो जाएगी। ठीक है सर। पावन जी प्लीज। इनफैक्ट मैं अभी एक ग्रुप में फोटो भेजूंगा, दिस इज समथिंग आई एम शेयरिंग। हमारे कुछ अच्छे प्रोजेक्ट्स में हम लोग अगर 100 मैनुअल्स है ना एक होटल प्रॉपर्टी में, 100 के 100 मैप करते हैं, उसमें नंबर्स लगाते हैं। आई विल शेयर यू अ फोटो इन द ग्रुप, देखिएगा, बहुत ही अमेजिंग लगेगा। मैं कनेक्ट करता हूं सर। सौरभ सर। गुड मॉर्निंग राजा जी, वंडरफुल प्रेजेंटेशन। गुड मॉर्निंग सर। बहुत बढ़िया थी। नाउ कमर्शियल का तो आपने बता दिया। माय क्वेश्चन इज रेजिडेंशियल जो प्रोजेक्ट्स हैं या रेजिडेंशियल हाउसेज हैं, उसके अंदर ये हमें कितनी प्रिकॉशन लेनी चाहिए और आपका क्या उसमें? सर रेजिडेंशियल में तो और प्रिकॉशन लेनी चाहिए, स्पेशली शिमला और शिमला के ऊपर मशोबरा साइड, क्योंकि कमर्शियल में तो फिर भी वर्कर्स होते हैं, मतलब कोई मिल जाएगा। रेजिडेंशियल में तो कभी प्रॉब्लम आ गई, क्योंकि सर्दियों का इलाका है, पानी जम जाता है ठंड में, तो नालियाँ, उससे कोई प्रॉब्लम आ गई तो वो सॉल्व होनी बड़ी मुश्किल हो जाती है। तो इसलिए बेटर ये है कि ड्रेनेज की डिजाइनिंग प्लम्बर्स ठीक है, दे आर द वंस हु डू द जॉब, बट इन द एंड यू हैव टू हैव अ सिस्टम अप्रोच टू दैट, वो करिए। एंड ग्रीस ट्रैप छोटा सा जरूर लगाएं, आपके साथ कंसल्टेशन करके उसको फिर
प्लम्बर के साथ फाइनलाइज करना चाहिए. दिस इज Plumber, sir, it is not only a plumber job. Plumber is something, it's a coordinated attempt with architect and engineer जो भी project में है. It has to be done. क्योंकि 90, जैसे मेरा एक्सपीरियंस है, 90% ऑफ प्लम्बर्स जो ट्रैप्स लगाते हैं वो गलत लगाते हैं. तरुण जी भी उसमें 90% मैंने गलत लगे हुए देखे हैं. वर्कमैनशिप इश्यूज होते हैं. सो कईयों की प्लेसमेंट्स इशूज होती है. सो ये सब चीज़ें सिस्टम प्रॉब्लम्स हैं. तो होटल घरों में तो पक्का ही इसका सॉल्यूशन. तभी मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज अटेंड आवर मास्टर क्लास. दैट इज समथिंग वेरी वैल्यूएबल. थैंक यू सो मच. ठीक है जी. तरुण सर, तरुण भैया. I like to say one thing, very good presentation sir. Except that एक चीज़ होती है कि चाहे हम घर पे करते हैं ड्रेनेज या हम होटल्स में करते हैं, मेन क्या होता है कि जो किचन का पानी है और जो हमारा फ्लश का पानी है वो सारा एक चैम्बर में मिक्स हो जाता है, स्पेशली रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ में. और उसमें क्या होता है कि जो हमारा बायो वेस्ट होता है फ्रॉम द वॉशरूम, जब वो ऑयल लगता है ऑफ द किचन ग्रीस एंड ऑल, वो हमारे सारे पोर्शन चोक करता है. तो जब भी हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, अभी फ्रेश कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, उसमें फिल्टर्स लगने चाहिए, उसमें सेग्रीगेशन होना चाहिए. एक मेरा ये एक से था. दूसरा बात गौरव जी, मैं बात करूँगा धंधे की बात. Let's plan a 1-to-1. I'll make you connect with the 2 MAP consultants who are doing 5-star properties and kindly connect with them for your Thank you. work, and you're doing very good. You're very efficient in your work, and it's really nice. And I think everyone should focus on especially the drainage system and a water recycling system, whether it's a commercial property, whether it's a domestic property. Thank you. थैंक यू सो मच सर. बस एक चीज ऐड करूंगा, हिमाचल में और बड़ी प्रॉब्लम है, आने वाले टाइम में बंदे नहीं मिलने, लेबर्स नहीं मिलनी साफ करने के लिए, कोई काम करके राजी नहीं है. राइट जी. जो ऑन रोड घर नहीं है, उनकी जब लाइन चौक हो जाती है तो मशीन नहीं आ सकती क्लियर करने के लिए. ऑब्वियसली, बिल्कुल ये कॉमन प्रॉब्लम है. तो सर्विस इज द ओनली प्रिकॉशन, इज द ओनली सॉल्यूशन. ग्रेट जी, ग्रेट. थैंक यू सो मच. इफ एनीबडी एल्स, किसी और का कोई क्वेश्चन तो नहीं है जी? आंसर ये थोड़ा सा, क्योंकि सुशांत जी है, जस्ट फॉर अ कॉन्टेक्स्ट मुझे अभी सडनली ध्यान आया, दिस इज आल्सो एप्लीकेबल फॉर ऑटोमोबाइल वर्कशॉप्स, स्पेशली कार वॉशिंग एंड हेवी वॉशिंग, क्योंकि उनका भी ग्रीस कई बार निकलता है. नहीं भैया, हमारे पास तो एसटीपी और ईटीपी हमने लगा ही रखा है पर्टिकुलरली. नहीं, मैं आपकी बात में एक जनरल एक जी, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कार वॉशिंग में नहीं यूज करते, बट दे शुड प्रोबेबली, बिकॉज मैं तो खुद ईटीपी प्लांट चलाना जानता हूं, तो मुझे पता है कि व्हाट ऑल गोज इनटू इट. तो मतलब इट इज वेरी रिकमेंडेड दैट एवरीवन पुट्स इट, मेक्स इट मच मोर इजियर टू यूटिलाइज द वाटर अगेन with Himachal facing the water shortage problem. And the best recycling for the car wash is really nice. जी, because recycling of water in the car wash, it takes. बिल्कुल बहुत इम्पोर्टेंट है सर, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है. वी फेस दिस प्रॉब्लम इन शोगी बिकॉज वहाँ तो इंडस्ट्रियल एरिया है, वहाँ पे हम पानी रीयूटिलाइज ही कर सकते हैं, और तो कोई सोर्स है ही नहीं, या फिर टैंकर खरीदो. So filtration is such more important thing. Right Thank जी. you so much. Thank you so much, Gaurav ji. Wonderful Thanks. presentation, yaar. Always you come up with something really interesting.